ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. Good morning children. Welcome to Samveda e-classes. Children, I once again welcome you all to the Samveda e-classes. Before starting the class, I would like to ask you to please be ready with your learning material like textbook, notebook, पेंसिल एंड इरेज़र. बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी दर्सी किताब, नोटबुक, टेक्स्ट बुक और पेंसिल और इरेज़र का बंदोबस्त रख कर के अपने साथ रख लीजिए. ओके चिल्ड्रन. So children, now we are going to learn from class 4th, subject second language English, unit art, under that lesson a unique painting, part 3 of 3. बच्चों, आज हम आपकी दर्सी किताब के 4th सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और उसमें से सबक आर्ट और उसमें से ज़मीनी सबक के यूनिक पेंटिंग का आखिरी हिस्सा सीखने जा रहे हैं. दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर part 3 a unique painting. Okay children, let's move to the activity. That is, I am now going to ask you the previous class homework. बच्चों, आपने previous class के homework को किया होगा. मैंने आपको थोड़े सवाल दिए थे. आप क्या है इनका जवाब लिखकर आए हैं ना. Tell me children, what you have written and what are the questions. I have given you some dialogue practice speech homework in the last class. See here, complete the following dialogues and practice them in pairs. This is your homework. And what is the question here? Do you like to dash and the B? Who utters the dialogue is dash. B, do you know dash, and A dash. बच्चों, इसमें क्या है? एक बच्चा दूसरे बच्चे को क्या है सवाल कर रहा है, फिर दूसरा बच्चा पहले बच्चे से सवाल कर रहा है. इसे हम ए और बी और ए के तहत पढ़ेंगे. जैसे कि जवाब है डू यू लाइक टू डांस, क्या तुम डांस करना चाह रहे हो? यस आई डू. सेकेंड बच्चा सवाल कर रहा है, जो जवाब दिया डू यू नो हारमोनियम. फर्स्ट वन नो आई डोंट. दीज आर द सिंपल डायलॉग्स. These are the answers children. Okay children, here also answers are there. Do you like to sing? Yes I do. Do you know guitar playing? No I don't know. This is the second example and second answers here. Okay children, let's move to the next question. Can you draw a picture? Can you draw a picture of dash? Picture of butterfly, picture of peacock, picture of something you want. And the second one, can you play on the dash? Can you play on the piano? Yes, I can. Can you draw a picture of an elephant? Yes, I can draw. Can you play on the harmonium? No, I cannot. Can you draw a picture of butterfly? Yes, I can. Can you play on the piano? No, I cannot. These are the two different examples are given. दो अलग अलग किस्म के जवाब और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. बच्चों, क्या आपने लिखा है? राइट डाउन इन योर notebook or textbook. Okay children, let's move to the next activity. So before going to start the class, I would like to show you the video of a unique painting lesson. The video of a unique painting lesson. Go and watch the video children. Okay children. बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम हमें एक सजीव चित्र बना के दो. बीरबल ये आदेश सुनकर चौंक गया. उसने कहा,
जहांपना मैं कोई चित्रकार नहीं, एक साधारण सा मंत्री हूं। मैं सजीव चित्र कैसे बना सकता हूं? अकबर ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं। अगर 7वें दिन तुम एक सजीव चित्र बनाकर नहीं लाए तो तुम्हें 50 कोड़ों की सजा दी जाएगी। हुक्म की तामील हो। सभी दरबारी बीरबल को सजा पाते देखना चाहते थे और इधर बीरबल अपने महल में चैन से आराम फरमा रहे थे। आखिर फैसले का दिन आ गया। बीरबल ने एक बहुत बड़े और ढके हुए चित्र के साथ दरबार में प्रवेश किया। सभी दरबारी बीरबल को चित्र के साथ देखकर चौंक गए। शहंशाह अकबर भी उस चित्र को देखने के लिए बेचैन हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, हमसे सब्र नहीं होता, जल्दी हमें अपना चित्र तो दिखाओ। बीरबल ने अपने चित्र पर से जैसे ही कपड़ा हटाया, सभी दरबारी हंस हंस के पागल हो गए। लेकिन अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, ये कैसा मजाक है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना यही तो है मेरा सजीव चित्र, घास चरता हुआ घोड़ा। अकबर ने कहा, बकवास मत करो बीरबल, बताओ इसमें घास कहां है? बीरबल ने कहा, जहांपना घास तो घोड़ा खा गया। अकबर ने फिर पूछा, और घोड़ा? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना घोड़ा घास खाकर दूसरी जगह घास चरने चला गया। तो कैसी लगी मेरी सजीव चित्रकारी? अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत प्रसन्न हुए और उससे 100 सोने की मोहरें इनाम में दी। सभी Now, welcome children, come back. Did you enjoy the video of ये यूनिक पेंटिंग? आपने हमारा सबक यूनिक पेंटिंग का ही वीडियो देखा। आपको वीडियो कैसा लगा? और इस वीडियो में क्या है, लास्ट का हिस्सा थोड़ा आपको जानबूझकर कट करके बताया जा रहा है, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखकर सबक ना समझ सकें, बल्कि हम सबक को पढ़ेंगे, बाद में क्या है आप वीडियो समझ जाएंगे, यानी कि आपको सबक पूरा समझ आ जाएगा बच्चों। ओके चिल्ड्रन, लेट्स मूव टू द next activity. Before going to start, I would like to revise the last class or previous class by asking some simple questions. Okay children, what is the first question here? Who was very clever? हमारी कहानी ये यूनिक पेंटिंग में क्लेवर कौन थे बच्चों, चालाक कौन थे? Here answer has written. Who is going to read this answer? Yes, read. Okay, yes, very good. You have read it correct. बच्चों तुमने सही पढ़ा. Okay, what was the answer? Birbal was very clever. Who was clever? Birbal was very clever. Okay. See the next question. Who came to the court next day? बच्चों next day यानी कि दूसरे दिन कोर्ट को कौन आए बच्चों? Answer has been written here. Who is going to read this answer? Yes, Birbal came to the court next day. बीरबल कोर्ट को आए दूसरे दिन. See the next question, third question. What did बीरबल brought? बीरबल अपने साथ क्या लाए थे? Who is going to read? Yes, you read it. Read. Okay. See. Yes. Very good. बीरबल brought something covered with a frame. बीरबल कुछ चीज़ लाए थे, लेकिन वो क्या थी? कवर थी, ढकी हुई थी, एक फ्रेम को ढका हुआ था, वो लाए थे बीरबल. ओके, सी द लास्ट क्वेश्चन. व्हाई अकबर वाज हैप्पी? अकबर क्यों खुश थे? बाय सीइंग बीरबल अकबर वाज हैप्पी. बीरबल दरबार में आते ही देखकर अकबर क्या हुए? खुश हो गए थे. इसीलिए वो समझ गए थे कि
कि बीरबल ने उनकी पेंटिंग मुकम्मल करके ला ली है, इसलिए वो खुश हो रहे थे। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द लेसन। प्लीज डोंट ओपन द बुक, listen to the words carefully which I utter and pronounce the words. Okay children, I am going to read this. Listen. A unique painting. The courtiers rushed to see the painting, but there was no painting at all. It showed just green grass and the sky. What is this? Shouted Akbar. Huzur, it is a cow eating grass, replied Birbal. Where is the cow? Asked Akbar. Huzur, I have used my imagination. The cow ate the grass and went out. Whatever remains is the grass that is left over. Akbar understood that he could not make someone a painter. He laughed and gave a gift of bag full of gold to Birbal. The courtiers were unhappy again. Did you hear the lesson, children? Okay, now repeat after me. I am going to read this lesson once again. Please open the textbook on page number 120. बच्चों अपनी दर्सी किताब का सफ़ा नंबर 120 आप क्या है खोलिए और मेरे साथ रिपीट कीजिए, मेरे साथ लेसन को दोहराइए। मेरे पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे। ए यूनिक पेंटिंग। द courtiers rushed to see the painting, but there was no painting at all. It showed just green grass and the sky. What is this? Shouted Akbar. Huzur, it is a cow eating grass, replied Birbal. Where is the cow? Asked Akbar. Huzur, I have used my imagination. The cow ate the grass and went out. Whatever remains is the grass that is left over. Akbar understood that he could not make someone a painter. He laughed and gave a gift of bag full of gold to Birbal. The courtiers were unhappy again. Okay children, let's move to the next segment, that is new words with their meanings. I am going to introduce some new words from this lesson and with images and with some meaning. बच्चों हम क्या करेंगे, सबक को समझने से पहले, एक्सप्लेनेशन से पहले हम थोड़े न्यू वर्ड्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को जान और पहचान लेंगे और उनके मानों को सीख लेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज रस्ट। व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ड? रस्ट। देखिए तस्वीर में भाग रहा है, जल्दी कर रहा है। टू मूव फॉरवर्ड। रश के माने क्या है? टू मूव फॉरवर्ड, यानी कि जल्दी करना। काम को क्या है, हम काम को टाइम पर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसा ही होगा कि हम रश में रहेंगे। अगर ट्रेन को चढ़नी है या बस को चढ़नी है तो हम वक्त पर जाएंगे तो भागम भागी नहीं करनी होगी। अगर हम देर से जाएंगे तो इसी तरह हम रश करके क्या है, भाग कर जाना पड़ेगा। बच्चों एक मिसाल दे रहा हूँ मैं ऐसा। दिस इज़ द फर्स्ट वर्ड rushed and the meaning is to move forward. Okay, see the next and second word showed. The meaning is brought into view, made visible, यानी कि देखने के काबिल बनाना। showed दिखाना, क्या दिखाया गया। showed, show means दिखाना, showed means दिखाया गया था। यहाँ पर एक टीचर बच्चों को क्या है, तस्वीर दिखा रही है, पेंटिंग्स दिखा रही है। देखो यहाँ पर बच्चे क्या हैं, बैठकर स्कूल में पेंटिंग देख रहे हैं। द टीचर इज शोइंग द पेंटिंग हियर। द टीचर शोड द पेंटिंग। ओके बच्चों, दिखाना, ब्राइट इंटरव्यू, यानी कि पर्दे के सामने लाकर दिखाना या अपने आप को सामने लाकर दिखाना। ओके चिल्ड्रन, सी द नेक्स्ट एंड थर्ड वर्ड। व्हाट इज द वर्ड रिटन हियर एंड हियर? एस एस एच ओ यू टी ई डी, shout, T-E-D, ted, shouted. And the meaning is to call or cry out loudly or to utter a sudden loud cry.
एकदम चीखना, चिल्लाना या फिर पुकारना, जोर से पुकारना, ज़्यादा शाउट करना। शाउट के माने क्या है? टू कॉल और क्राई आउट लाउडली, बुलंद पानी से पुकारना, जोरदार पुकारना। जैसे कि हम किसी का नाम लेते हैं तो क्या बोलते हैं? अजय, ऐसा बोल के पुकारना। नेक्स्ट, रिमेन्स, स्टे एंड कंटिन्यू। द मीनिंग ऑफ रिमेन्स इज स्टे एंड कंटिन्यू। बाकी है यानी कि बचा हुआ, रिमेन्स। वैसे ही अपनी जगह पर कायम रहना, रिमेन। द एग्जाम्पल ऑफ रिमेन्स वर्सेस स्टे have been given here. To continue to be without changing, बिना बदले अपनी जगह पर कायम रहना, remain. To continue or remain certain position. Stay के माने क्या है? अपनी पोजीशन को बिना चेंज हुए या फिर थोड़ा बदले हुए रहना, इसे क्या कहते हैं? स्टे कहते हैं। तो रिमेन और स्टे के माने हैं और एग्जाम्पल्स हैं बच्चों यहाँ पर। सीधा नेक्स्ट इमेज एंड द नेक्स्ट वर्ड एंड इट्स मीनिंग। लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर, बचा कुचा। उर्दू में क्या कहते हैं? बचा कुचा। समथिंग रिमेनिंग आफ्टर द रेस्ट हैज़ बीन यूज्ड अनईटन और रिमेन्स। जो पिछला वर्ड था रिमेन्स, उसका भी माना यही होता है कि लेफ्ट ओवर। यहाँ पर देखिए तस्वीर में खाना है, यहाँ पर प्लेट्स में क्या है? थोड़े थोड़े चीज़ें बचे हुए हैं, इसे हम क्या कहते हैं? लेफ्ट ओवर। हम प्लेट में क्या है? शादी में जाते हैं, दावतों में जाते हैं, पूरा खा के नहीं आते, थोड़ा क्या है प्लेट में बचा देते हैं, उसे क्या कहते हैं? लेफ्ट ओवर। घर से टिफ़िन बॉक्स भी लाते हैं, पूरा टिफ़िन हम खाते हैं या नहीं खाते, जो बचा लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लेफ्ट ओवर कहते हैं। सीधा नेक्स्ट वर्ड, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड, द मीनिंग इज अंडरस्टैंड समथिंग और फुल्ली अंडरस्टैंड। यानी कि अंडरस्टूड मीन्स समझ गए, पूरा पहले से है हम क्या है? समझ कर हैं। अंडरस्टूड मीन्स समझ गए। द किंग हु अंडरस्टूड एनिमल्स। यहाँ पर एक मिसाल है, क्या है? ये राजा क्या है? जानवरों की बात समझता है, जानवरों को समझता है, उनका दुख दर्द समझता है, इसे कहते हैं अंडरस्टूड, समझा हुआ। ओके चिल्ड्रन, सीधा नेक्स्ट वर्ड, लाफ्ड। टू शो इमोशन विथ ए चकल आर एक्सप्लोजिव ओकल साउंड, जोर से हंसना। ये देखिए राजा हंस रहा है, एक है सडन एकाएक हम ना कुछ चीज़ देखकर क्या है? जोर से, स्माइल नहीं, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, ऐसा हमारा चेहरे पर रिंकल आते हैं जब हम हंसते हैं। लेकिन जब हम लॉफिंग करते हैं, लॉफ करते हैं, तो हमारा पूरा मुंह क्या होता है? खुलता है, ऐसे बोल के तो क्या है? लॉफ्ड है। राजा क्या है? जोर से कुछ बात सुनकर हंस रहे हैं इस तस्वीर में। सीधा नेक्स्ट एंड द लास्ट इमेज हियर। व्हाट इज दिस द इमेज? यस, इज ही लाफिंग और ही स्माइलिंग? नो, ये लाफिंग भी नहीं है, स्माइलिंग भी नहीं है। बच्चा क्या है? रो रहा है, दुखी है। तो ये क्या है? अनहैप्पी है। ये हैप्पी है? नहीं, अनहैप्पी है। हैप्पी का ऑपोजिट है अनहैप्पी, एंड द वर्ड इज अनहैप्पी, नॉट हैप्पी, सैड। द मीनिंग इज नॉट हैप्पी एंड सैड। एंड द पिक्चर इज, बच्चा क्या है? बिल्कुल खुश नहीं, इसके चेहरे से हमें कुछ भी हंसी मुस्कुराहट नज़र नहीं आ रही है, बच्चा परेशानी में है। ओके चिल्ड्रन, द मीनिंग इज लाइक दैट, सैड। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द lesson. Okay children, listen carefully and understand the lesson. In the last class, Birbal has came to the court and he showed the painting to the Akbar. By seeing the painting, Akbar became angry and he was sending Birbal to the out of the country. Now see, now all the courtiers were rushed to see the painting of the Birbal, but there was no painting at all. बच्चों अब क्या है, इस आज के सबक में हम क्या सीखेंगे कि जैसे ही राजा अकबर ने वो पेंटिंग देखी, उनको गुस्सा आ गया, उसी तरह सभी दरबारियाँ भाग कर गए बीरबल के पास और उन्होंने तस्वीर को, पेंटिंग को देखा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था, पेंटिंग खाली थी। It showed just some green grass
एंड द स्काई। पेंटिंग पर ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ी घास थी और थोड़ा आसमान था। By seeing this, Akbar shouted at Birbal and asked, "What is this, Birbal?" इस तस्वीर को देखने के बाद अकबर को गुस्सा आ गया था। तब अकबर ने सवाल पूछा, ये क्या है बीरबल? इस पेंटिंग में कुछ नहीं है। What is this, बीरबल? हुजूर, बीरबल ने जवाब दिया, जहाँ पना, इट इज़ ए पेंटिंग ऑफ काउ ईटिंग ए ग्रास। जहाँ पना ये एक घास खाती हुई गाय की तस्वीर है। वेयर इज द काउ इन द पिक्चर? अकबर ने क्या पूछा, इस तस्वीर में घास खाती हुई गाय कहाँ है? क्वेश्चन अकबर once again. Birbal replied to Akbar that he used his imagination in that picture. The cow ate the grass and went out. Whatever remains is the grass and the sky that is left over. बीरबल ने बड़ी आजीजी से कहा, हुजूर आप ही ने तो कहा था कि इमेजिनेशन, अपना तस्वुर से, अपने ख्यालात से क्या है, तस्वीर को यानी कि पेंटिंग को मुकम्मल कीजिए। तो मैंने क्या किया, अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया और मैंने इस तस्वीर में घास खाती हुई गाय की एक इमेज बना डाली। अब क्या है, जैसे ही घास खाकर हो गया, गाय क्या हुई, वहाँ से चली गई और जो कुछ बचा हुआ है, जो घास बची हुई है वो है और आसमान है, इतना ही बचा हुआ है। यानी कि जो बचा हुआ बच गया है तस्वीर में, वो सिर्फ घास और ग्रास और स्काई है, आसमान है। अकबर अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ बीरबल। ही कैनॉट फॉट विद द विट और क्लेवरनेस ऑफ द बीरबल एंड आल्सो ही कैनॉट फोर्सफुली मेक समवन ए पेंटर और डांसर और फोटोग्राफर इन 1 or 2 वीक्स और मंथ्स। अकबर अच्छी तरह से समझ गए कि किसी को भी हम ज़बरदस्ती क्या है, पेंटर, डांसर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर नहीं बना सकते, या फिर हम फोर्सफुली किसी के साथ नहीं ज़बरदस्ती कर सकते, और ख़ास करके हम बीरबल के साथ तो नहीं कर सकते, क्योंकि बीरबल क्या है, एक चालाक किस्म के इंसान है और बीरबल की चालाकी से सभी वाकिफ़ हैं। तो बीरबल इतने आइडियाज़ लगाते हैं कि उनके सामने अकबर बादशाह हार जाते हैं। तो बीरबल की चालाकी से हम ये तो नहीं कर सकते, या फिर ज़बरदस्ती हम 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर किसी को हम डांसर, फोटोग्राफर या कुछ भी हम नहीं बना सकते। ये बात को अकबर अच्छी तरह से अब समझ गए थे। ही अप्रिशिएट्स द विजडम ऑफ बीरबल, गेव ए गिफ्ट हैम्पर ऑफ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स और बार्स टू बीरबल। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए, उन्हें सराहते हुए उनको क्या है, एक गिफ्ट बैग दिया जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे, सोने के कॉइन्स थे और सोने के बार्स थे। By seeing Birbal was once again became victorious, the courtiers felt sad, jealous and became unhappy again. बीरबल को फिर से जीतते हुए देखकर थोड़े दरबारी बीरबल से जो नाराज़ थे, बीरबल से जो जलन रखते थे, हसद रखते थे, वो फिर से क्या हो गए, अनहैप्पी हो गए, सैड हो गए, गमगीन हो गए, नाखुश हो गए वो। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। क्या आपने इसे अच्छी तरह से समझा है ना? तो ये कहानी कैसी थी, इससे हमने क्या सबक सीखा कि हम किसी भी ज़बरदस्ती से हम उसे एक पेंटर या एक डांसर या एक म्यूजिशियन या एक टीचर हम उसे नहीं बना सकते। जिसमें जो काबिलियत है वो वही बन सकता है। हम जिससे जो काम लेना चाहते हैं वो काम हम उसे उसकी हैसियत से, उसकी काबिलियत से दे सकते हैं। यही हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी है। और हम बीरबल के सामने, बीरबल की चालाकी के सामने अकबर बादशाह कभी भी क्या है, हार जाते हैं। सीधा नेक्स्ट, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज ग्रामर एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 122। बच्चों प्लीज़ ओपन द टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 122। अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 122 खोलिए। इसमें मैच द फॉलोइंग का एक कॉलम है, सवाल है, इधर क्या है, आपको जवाब लिखना है। ओके चिल्ड्रन, सी 2 columns आर गिवन below. Column A has questions and column B has the incomplete answers. Complete the answers and match the columns in pairs.
क्या है बच्चों, इसमें सवालात दिए गए हैं, इसमें जवाबात हैं लेकिन मुकम्मिल नहीं है, आधे हैं। इसे तुम क्या करना है, मुकम्मिल करना है अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने बड़ों के साथ मिलकर। क्या है, आपको इसका काम मुकम्मिल करना है। यू हैव 2 minutes ऑफ टाइम टू डू दिस एक्टिविटी। व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज बीरबल इन द कोर्ट ऑफ अकबर। बीरबल अकबर के कोर्ट में क्या थे। व्हाट वुड बी द पनिशमेंट इफ बीरबल डिड नॉट ब्रिंग ए पेंटिंग। अगर बीरबल पेंटिंग नहीं ला रहे हैं तो उन्हें क्या सज़ा मिलने वाली थी। हाउ डिड द कोर्टियर्स फील ऑन हियरिंग। ये बात को सुनकर दरबारियों को कैसा लगा। व्हाट वाज द पिक्चर, जो बीरबल में तस्वीर लाई थी वो कैसी थी। बीरबल वुड बी सेंट आउट ऑफ डैश, दे फेल्ट डैश, द पिक्चर शोड जस्ट डैश एंड डैश, बीरबल वाज डैश। ये जवाब भी क्या है, ऊपर नीचे है। आपको इन्हें भी बराबर करते हुए और खाली जगह को पूर्ण करते हुए क्या है, आपको जवाब लिखना है। यू हैव 2 minutes ऑफ टाइम टू डू द वर्क। ओके चिल्ड्रन, नाउ वेलकम चिल्ड्रन, हैव यू फिनिश द वर्क। ओके, टेल मी द आंसर। हु वाज बीरबल इन द कोर्ट ऑफ अकबर। यस, वेरी गुड। व्हाट वुड बी द पनिशमेंट इफ बीरबल डिड नॉट ब्रिंग ए पेंटिंग। ओके, very good, correct answer. And what the third, how did the courtiers feel on hearing this। okay okay okay, very good, बहुत अच्छे बच्चों, करेक्ट जवाब लिखा है। what was the picture, yes, very good. now I am going to read the answers for the first one. what was Birbal in the court of Akbar। Birbal was a minister। बीरबल कौन थे, अकबर के कोर्ट में, अकबर के दरबार में एक मंत्री थे। What would be the punishment if Birbal did not bring a painting। Birbal would be sent out of the country. And the third, how did the courtiers feel on hearing, they felt jealous। What was the picture, the picture showed just sky and green grass। Okay children, those who have not written the answers, please write down in your notebook। I am giving you 1 minute of time। Okay children, let's move to the next. What is this, preposition। Preposition, a preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun। it is used to show direction, time, place, location, special relationships or to introduce an object। preposition क्या है बच्चों, एक पार्ट्स ऑफ द स्पीच है जो नाउन के पहले इस्तेमाल करते हैं या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू शो डायरेक्शंस। सेंटेंस में डायरेक्शंस बताने में इस्तेमाल होता है, टाइम बताने इस्तेमाल होता है, प्लेस बताने इस्तेमाल होता है, लोकेशन और स्पेशल रिलेशनशिप आर टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। एक चीज़ को भी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन करना है या उसका, तब भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल हैं थोड़े, इन, अट, ऑन, ऑफ, टू, अंडर, ऑफ, ओवर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसे हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। सी हियर, preposition a word which is used before a noun phrase or a pronoun connecting it to the another word। बच्चों, इसके उर्दू माने हैं। आसान लफ्ज़ में प्रीपोजिशन इस लफ्ज़ को कहते हैं जो एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ का ताल्लुक़ ज़ाहिर करे किसी भी फ़ुकरे में। ये ताल्लुक़ किसी सिमत, जगह, वक्त, वजह, रकम का हो सकता है। एंड दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ prepositions: above, about, across, against, along, like this। Children, see here, this is prepositions of time। वक्त, prepositions of time के थोड़े एग्जाम्पल हैं। इन, इनको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन अप्रैल, इन जनवरी, लाइक दैट वी विल यूज इन। एंड ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन संडे, ऑन अप्रैल, ऑन 24 जनवरी। ऑन का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। अट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? अट 8:30 AM, अट 12 o'clock, अट मिडनाइट, अट नून और अट मिडडे। टाइम का इस्तेमाल ऐसा होता है प्रीपोजिशंस का। सी द नेक्स्ट, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। जगह का इस्तेमाल कैसा करते हैं? यहाँ पर देखिए, बॉल अंदर है, यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ क्या है,
बाजू में है। इसे हम क्या बोलते हैं? इन द बॉक्स, ऑन द बॉक्स, अंडर द बॉक्स, नेक्स्ट टू द बॉक्स, बिटवीन द बॉक्स, अमॉन्ग द बॉक्सेस, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, बिहाइंड, above the box, below the box, near the box, far from the box, at the door। ऐसा प्लेस का इस्तेमाल करते हैं हम प्रीपोजिशंस के। सी द नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। डाउन द स्टेयर्स, अप द स्टेयर्स। बॉल नीचे आ रहा है तो डाउन द स्टेयर्स, ऊपर जा रहा है तो अप द स्टेयर्स। आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर निकल रहा है बाहर, इनटू द बॉक्स, बॉक्स में जा रहा है। टूवर्ड, अवे, पास्ट, ओवर, ऑन टू, ऑफ, अराउंड, अंडर, along, across, through। ये थोड़े एग्जाम्पल है मोमेंट के। यहाँ पर देखिए, इन द कार, above ऊपर है, between, after, on the bed, under the bed, across the, before the cat is sitting before the cat, behind the tree, next to, in the middle, among, near, in front, around, at, away from, beside, beneath, out। These are the some examples of prepositions। Now here another activity is there for you on page number 132। बच्चों अपनी किताब का, दर्सी किताब का सफ़ा नंबर 132 ओपन कीजिए और वहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसको आपको जगह भर्ती करना है प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते हुए। बच्चों प्रीपोजिशंस का इसमें यहाँ पर ब्रैकेट में आपको जवाब दिए गए हैं, इन, ऑन, अट, फ्रॉम, टू, लाइक दिस। सो यू हैव टू fill the blanks according to the sentence। Okay, complete the birthday invitation given below by filling the gaps with the appropriate prepositions given in brackets। Hi, I am inviting you dash birthday, my birthday party which will be full of fun and frolic। The party is dash 24th May dash 7 p.m. dash my sweet home, be there, don't miss out dash the fun from your dear friend। Now write the same invitation in your card। आपको इस कार्ड को मुकम्मल करके ऐसा ही अपना दूसरा कार्ड आपके दोस्त के नाम पर आपको लिखना है। You have 1 minute of time to write the answers। Okay children, now see the answers here। I am inviting you to my birthday party। What you have to write there? To, which will be full of fun and frolic। The party is on 24th May at 7 p.m. in my sweet home, be there, don't miss out from the fun। यहाँ पर आपको जवाबात हैं, प्लीज राइट डाउन इन योर notebook। Okay children, another example is there here, you can write this also। Okay children, now I am going to finish my class। Before finishing the class I would like to give you some homework। बच्चों क्लास ख़त्म करने से पहले मैं आपको थोड़ा घर पर काम देना चाहता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस रोल प्ले ऑफ अकबर एंड बीरबल बाय कंप्लीटिंग द डायलॉग ऑन पेज नंबर 121। ओके चिल्ड्रन, डायलॉग प्रैक्टिस है पेज नंबर आपके 121 के सफ़े में, तो आपको वो प्रैक्टिस का करना है और लिखना भी है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन चूजिंग फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट्स ऑन पेज नंबर 129। जो हम प्रीपोजिशंस पढ़े बच्चों उसका इस्तेमाल करते हुए, उसको याद करते हुए आपको क्या है सफ़ा नंबर 129 में भी प्रीपोजिशंस का ब्रैकेट में जवाब दिए गए हैं, उसे चुनकर आपको मुकम्मल करके मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है। कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर बाय फिलिंग द गैप्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द फ्लोवर पेज नंबर 133। सफ़ा नंबर 133 में भी क्या है आपको इसका प्रीपोजिशंस के थोड़े वर्ड्स दिए गए हैं, उसे फिल करते हुए आप क्या करना है, इसको मुकम्मल करना है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके चिल्ड्रन, आई एम शुजातुल्लाह खान, वर्किंग एट गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मटमारी फ्रॉम रायचूर डिस्ट्रिक्ट। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, बाय बाय। अनुदिना